I am head HOD from, and we have Ms. Chalak Lowang, assistant. Last but not the least, we have Hebojit Deka, assistant professor from. है कि मैं उस देश की बेटी हूँ जो विश्व गुरु कहलाता है। मुझे गर्व है कि मैं उस सुंदर प्रदेश की बेटी हूँ जहाँ 100 से भी ज्यादा जनजाति एक साथ रहते हैं। निशी गालो आदि सभी के रीति रिवाजों की मान यहाँ, परिंदों का गान, पहाड़ों की शान, यही तो है बपुम पारे की जान। इसी सुनहरी भारत की कल्पना के साथ मैं तेजी नोसू आप सबका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। वन नेशन वन इलेक्शन, नया इलेक्शन, नए वादे, फिर नया इलेक्शन। कितना अच्छा होगा अगर लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, ग्राम पंचायत सभी के इलेक्शन एक साथ एक ही बार हो जाए। Where democracy doesn't stumble, policies don't freeze, where elections aren't a chaotic storm but a well-formed peace. Today, ladies and gentlemen, I live in a developing nation where infrastructure and security are major concerns. But as soon as a model code of conduct is issued due to the frequent elections, everything comes down to zero. New road construction, new development projects, border security, policy decision making, everything too comes down to a zero. And we, knowingly or unknowingly, became a part of this vicious circle. The money that was supposed to build our future was spent to buy our votes. Is this the Bharat that Baba Ambedkar dreamt of? Imagine a Bharat where leaders spend more time in building the nation than battling elections. A Bharat where instead of spending billions and billions of rupees in conducting frequent elections, we spend billions and billions of rupees in making better schools, better colleges, better hospitals. And we, me, you, and all of us, we come together as one we, as one us, as one India, one nation, one Bharat to cast our vote together, creating a history, creating a festival of democracy never seen before. This, my friends, is not just a policy, it's a vision. Some say that one nation, one election requires institutional amendment. But I say that great reforms are born out of bold commitment. If India can have simultaneous election in the 1950s, why can't it have it again in the 21st centuries? But is it even possible? अगर GST possible है, तो one nation, one election क्यों नहीं? अगर आर्टिकल 370 हट सकता
तो बार बार होने वाले चुनाव क्यों नहीं? अगर चंद्रयान चांद में लैंड कर सकता है तो मैं और आप एक साथ वोट क्यों नहीं डाल सकते हमारे भारत के लिए? और अगर हमसे ये कोई बोले कि हमारी बस की नहीं है, कंसिडरिंग द पॉपुलेशन इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ आवर कंट्री, तो मैं उनसे बस एक उत्तर देना चाहूंगी, भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा वीक है, ये हमारे लिए ताना था। भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा वीक है, ये हमारे लिए ताना था। दोस्तों, सबको याद दिला दो, श्री राम ने तो त्रेता युग में सेतु बना डाला था। और इसी के साथ मैं अपना भाषण Thanks for coming in our college to coverage our program about Dikshit Bharat Youth Parliament 2025, which covers at least 7 districts today, and that competition round was held in our college under the leadership of Mr. Boto Mayong and myself. About 100 plus competitors participants have took part in this competition, and out of these 150 participants, we are going to select at least 10 participants from different districts. So we have also invited at least 5 jury members who will perform the as a judge for the competition, and with this I would like to extend my heartfelt thankfulness to all the participants. Dikshit Bharat Youth Parliament 2025. Actually, earlier it was National Youth Parliament Festival, but this time the Ministry of Youth Affairs and Sports have reimagined this National Youth Parliament Festival as the Dikshit Bharat Youth Parliament. Considering the Narendra Modi's Prime Minister Narendra Modi's vision for the Viksit Bharat at the rate 2047, this event is being organized across the whole nation. So, as a part of this, our DNGC, Deranatung Government College Itanagar, has been selected as one of the nodal institutes covering the 8 districts. There is ICR, Papumpare, Lower Subansiri, Kaipanyar, Kamle, Kurumkume, and then Karadadi. So, 268 students have participated in the initial round, that is registration round, where the candidate has to upload a 1-minute video on the topic, what does Viksit Bharat mean to you? And out of 268, the top 150 winners had been selected for the district nodal round, and the district nodal round competition, it is being organized today. So out of 150 participants, around 50 participants have participated in the event today. आज का प्रोग्राम ये हमारा डिस्ट्रिक्ट नोडल सेंटर के रूप में हमारे कॉलेज को सिलेक्ट किया गया, और इसमें मिस्टर बोते मोयोंग जी जो हैं वो डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर, और उनको ऑर्गेनाइजिंग कमेटी कुछ हमारे फैकल्टी मेंबर्स जैसे ओम्बी रीरम, हेवजीत डीका और कीपर ओनी, ये लोग चलक लवांग सब मिलकर इन्होंने ऑर्गेनाइज किया है। तो प्रिपरेशन तो 6-7 मार्च से ही चल रहा था, रजिस्ट्रेशन वगैरह हुआ, और अरुणाचल प्रदेश में 5 नोडल सेंटर्स बनाए गए हैं, जिसमें देरा नातुंग गवर्नमेंट कॉलेज ईटानगर एक है, फिर इंदिरा गांधी गवर्नमेंट कॉलेज तेजू है,
JN कॉलेज पासीघाट है, SFS कॉलेज आलो, गवर्नमेंट कॉलेज बॉम्बीला, ये 5 नोडल सेंटर्स बनाए गए विकसित भारत यूथ पार्लियामेंट 2025 के लिए। तो इसके आयोजन मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स के अंतर्गत हमारे NSS और नेहरू युवा केंद्र, डेरा नातुंग गवर्नमेंट कॉलेज ईटानगर, हमारे लिए बीइंग हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन एंड प्रिंसिपल ये गर्व की बात है कि हमारे कॉलेज के अंतर्गत 8 डिस्ट्रिक्ट्स को कवर किया गया है और 8 डिस्ट्रिक्ट्स के पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो दिस इज मैटर ऑफ ग्रेट प्राइड फॉर ऑल ऑफ अस बीइंग मेंबर्स ऑफ द फैमिली ऑफ डेरा नातुंग गवर्नमेंट कॉलेज ईटानगर। और देखा जाए तो यूथ का पॉपुलेशन भी सबसे ज़्यादा ये ईटानगर कैपिटल रीजन में आता है। नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशंस भी हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन के सबसे ज़्यादा हमारे ईटानगर कैपिटल रीजन में है। और जो 8 डिस्ट्रिक्ट्स को कवर किया इस नोडल सेंटर ने हमारे कॉलेज के, डेरा नातुंग गवर्नमेंट कॉलेज ईटानगर के, वो 8 डिस्ट्रिक्ट्स है लोअर सुबनसिरी, कई पेनियोर, फिर उसके बाद कुरुंग कुमे, कड़ा दादी, कामले, पाके केसांग, पापुम पारे और ये ईटानगर कैपिटल रीजन। तो सारे 8 डिस्ट्रिक्ट से हमने विद हेल्प ऑफ आवर प्रोग्राम ऑफिसर्स, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी, स्पेशली डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर ने बहुत मेहनत किया। सबों ने, हमारे NSS वॉलंटियर्स ने और SLO के गाइडेंस में बहुत अच्छे से प्रिपरेशन हुआ। रजिस्ट्रेशन चला, लगभग 268 रजिस्ट्रेशन कराए इस पार्टिसिपेंट्स ने फ्रॉम ऑल 8 डिस्ट्रिक्ट्स। उसमें से 150 का सिलेक्शन हुआ। 1 मिनट की वीडियो क्लिप को अपलोड करना था और उसमें किया। और फिर आज जो है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल का कंपटीशन होगा, जिनका सिलेक्शन हुआ स्क्रीनिंग के बाद वो चुने हुए जो क्वालिफाई हुए जिनका सिलेक्शन, उनको आज फिर से पैनल ऑफ जूरी जज करेगी उनके परफॉर्मेंस को। ये बहुत अच्छी चीज़ है कि हमारे स्टूडेंट्स को, युवा को ये मौका दिया जा रहा है, प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है कि उनका क्या व्यूज़ है। ये 1 नेशन 1 इलेक्शन पेविंग द वे टुवर्ड्स विकसित भारत एट 2047, इसके बारे में युवा को सेंसिटाइज करने का और युवा को एक अवसर देने का कि वो क्या सोचते हैं, तो वो खुलकर इस पर बोल रहे हैं, अपने विचार को व्यक्त कर रहे हैं। यही मिशन है और एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स है जानने का। और उसके आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं आपके चैनल के माध्यम से यह बताना चाहता हूं कि आज हम लोग यहाँ डेरा नातुंग गवर्नमेंट कॉलेज के कॉन्फ्रेंस हॉल में विकसित भारत यूथ पार्लियामेंट जो डिस्ट्रिक्ट लेवल का सिलेक्शन है उसके लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। यह बहुत अच्छा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जिसमें कि हमारे स्टेट के सारे यूथ को एक अपॉर्चुनिटी मिला कि वो अपने आप को विकसित भारत पोर्टल पे रजिस्टर्ड करें, माई भारत पोर्टल पे रजिस्टर्ड करके अपने व्यू पॉइंट को, जो 1 नेशन 1 इलेक्शन यही थीम है, और विकसित भारत कैसे हमारा राष्ट्र बने उसके बारे में वो अपने व्यू पॉइंट्स को रखें। तो मुझे यह खुशी हो रही है कि हमारा जो डेरा नातुंग गवर्नमेंट कॉलेज है यह हमारे स्टेट का सबसे बड़ा नोडल डिस्ट्रिक्ट है, क्योंकि इस नोडल डिस्ट्रिक्ट्स में 8 डिस्ट्रिक्ट्स को रखा गया है। और एज ए स्टेट लियाजन ऑफिसर NSS मैं बहुत थैंकफुल हूँ प्रिंसिपल डॉक्टर MQ खान, डेरा नातुंग गवर्नमेंट कॉलेज एंड हिज टीम, हमारे डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर बोतेम मोयोंग जी, हमारे अदर प्रोग्राम ऑफिसर्स कीपारोनी, डॉक्टर कीपारोनी, और हमारे जो टीम ऑर्गेनाइजिंग टीम के मेंबर हैं, जो जूरी मेंबर्स हैं, उन सबका मैं आभारी हूँ। और मैं यह भी बताना चाहता हूँ कि अगर नॉर्थ ईस्ट के पूरे डेटा को अगर हम लेते हैं तो हमारा स्टेट माई भारत पोर्टल रजिस्ट्रेशन में 3rd नंबर पे है, लेकिन हमारे यहाँ टोटल NSS एलोकेशन 17,800 है। तो अगर उस नंबर को अगर हम लेते हैं तो नॉर्थ ईस्ट में हमारा स्टेट अरुणाचल प्रदेश 2nd नंबर पे है। और हमारे बच्चों का पार्टिसिपेशन बहुत अच्छा है, वो अपने व्यू पॉइंट को ये विकसित भारत यूथ पार्लियामेंट के माध्यम से अपने व्यू पॉइंट्स को रख रहे हैं। और जैसा कि आप पहले भी बताया गया है कि हमारे जो बेस्ट 3 परफॉर्मर्स होंगे उनका सिलेक्शन होगा और वो नई दिल्ली में अरुणाचल प्रदेश को रिप्रेजेंट करेंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से यह भी बताना चाहता हूं कि स्टेट लेवल यूथ पार्लियामेंट
प्रोपोज है हमारा अरुणाचल प्रदेश स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, और अगर हमारे ऑनरेबल स्पीकर सर अवेलेबल होंगे तो वो भी एक जूरी मेंबर होंगे उस सिलेक्शन प्रोसेस का, जहां से हमारे 3 बच्चे सिलेक्ट होंगे। तो हमारे पूरे स्टेट में 5 नोडल सेंटर्स हैं, उस 5 नोडल सेंटर्स से जो सिलेक्ट होकर के यहाँ आएंगे, वहां से हम 3 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करके नेशनल लेवल में अरुणाचल प्रदेश को रिप्रेजेंट करने के लिए भेजेंगे। तो यह सारे पार्टिसिपेंट्स के लिए एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि वो अपने व्यू पॉइंट्स को विकसित भारत के बारे में बताएं। 1 नेशन 1 इलेक्शन जो कि एक प्रोपोज्ड है, मैं यह भी बताना चाहूँगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक अमेंडमेंट लाना चाह रही है। उसके लिए फॉर्मर प्रेसिडेंट के चेयरमैनशिप श्री रामनाथ कोविंद जी के नेतृत्व में एक कमेटी बनाया गया है। कमेटी ने रिपोर्ट दिया है, लेकिन मास मूवमेंट के तरह मास पार्टिसिपेशन, खासकर युवा वर्ग को पार्टिसिपेट कराने के लिए ये गवर्नमेंट एक प्रयास कर रही है कि वो जनमानस को यह समझे कि उनका क्या व्यू पॉइंट है 1 नेशन 1 इलेक्शन। तो इसी के तहत यह विकसित भारत यूथ पार्लियामेंट बहुत सक्सेसफुली हमारे पूरे स्टेट में कंडक्ट हुआ है, हो रहा है अभी, और उसी के तहत यहाँ देरा नातुंग गवर्नमेंट कॉलेज ईटानगर में भी हम लोग इकट्ठा